न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पंजाब पुलिस ने पटियाला में नया ANTF कार्यालय शुरू किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा संपन्न। बकरों की कीमतें 15,000 से 2 लाख तक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब पुलिस ने पटियाला में नया ANTF कार्यालय शुरू किया। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग को और धारा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। DGP गौरव यादव ने आज पटियाला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि अब तक 8,344 केस दर्ज हो चुके हैं और 14,744 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब्त की गई ड्रग्स मानी 10.66 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने पटियाला पुलिस लाइन में नवनिर्मित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ANTF इस पूरे अभियान का समन्वय और निगरानी कर रहा है। आज पटियाला रेंज का ANTF कार्यालय शुरू हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में कार्यवाही और प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने पटियाला में नया ANTF कार्यालय शुरू किया। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग को और धारा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। DGP गौरव यादव ने आज पटियाला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि अब तक 8,344 केस दर्ज हो चुके हैं और 14,744 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब्त की गई ड्रग्स मानी 10.66 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने पटियाला पुलिस लाइन में नवनिर्मित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ANTF इस पूरे अभियान का समन्वय और निगरानी कर रहा है। आज पटियाला रेंज का ANTF कार्यालय शुरू हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में कार्यवाही और प्रभावी होगी। शुरू करा जी। अच्छा, अज पंजाब सरकार का जिहड़ा युद्ध नशा विरुद्ध अभियान चल रहा है, उस दे अंतर्गत जिहड़ी साडी मेन नोडल एजेंसी न्यूक्लियस ऑफ दिस ड्राइव इज़ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जिस दे मुखी सरदार कुलदीप सिंह मेरे दोस्त इत्थे बैठे हैगे। सो ANTF इस ड्राइव नूं कोआर्डिनेट ते मॉनीटर कर रही है, जिहड़ी साडे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ी एनफोर्समेंट एक्टिविटी हो रही है, ते नाल दी नाल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ANTF ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ANTF ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚੈਟਬੋਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ANTF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6800 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ AIG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ, ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ, SP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ANTF ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। 31 ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 8,344 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,700
34 लोग गिरफ्तार होए ਸੀਗੇ 586 kg ਹੀਰੋਇਨ 247 kg ਅਫੀਮ 13,551 kg ਪੌਪੀ ਹਸਕ 9 kg ਚਰਸ 253 kg ਗਾਂਜਾ 2.58 kg ਆਈਸ 1.6 kg ਕੋਕੇਨ 25,70,000 ਕੈਪਸੂਲ ਪਿਲਸ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2150 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9216 ਟਿਪਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1687 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1946 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। 144 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਫॉर ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 74.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1205 ਕੇਸਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1085 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ हेल्थ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की विदेश यात्रा संपन्न। दिल्ली से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और मनपा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने 5 देशों की यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। इन देशों ने भारत को लेकर कुछ गलत धाराएं बनी हुई थी जो पश्चिम मीडिया की भारत पाकिस्तान झड़पों से जुड़ी रिपोर्टिंग के कारण थी। डॉक्टर ब्रिटास ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारत की स्थिति को स्पष्ट करना था और प्रतिनिधि मंडल ने सफलतापूर्वक ये संदेश पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान से भ्रम दूर हुए हैं और भारत की स्थिति स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब ये सरकार का कर्तव्य है कि वे संसद बुलाए लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी दे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की विदेश यात्रा संपन्न। दिल्ली से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और मनपा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने 5 देशों की यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। इन देशों ने भारत को लेकर कुछ गलत धाराएं बनी हुई थी जो पश्चिम मीडिया की भारत पाकिस्तान झड़पों से जुड़ी रिपोर्टिंग के कारण थी। डॉक्टर ब्रिटास ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारत की स्थिति को स्पष्ट करना था और प्रतिनिधि मंडल ने सफलतापूर्वक ये संदेश पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान से भ्रम दूर हुए हैं और भारत की स्थिति स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब ये सरकार का कर्तव्य है कि वे संसद बुलाए लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी दे। Response from there, from all the countries that you visited. We have got mixed response from all these countries. We visited Japan, South Korea, Indonesia, Singapore, and Malaysia. There were so much of misinformation, disinformation in that part of the globe. Maybe because of the Western media's reportage on Indo-Pak skirmishes. There were so many impressions that India has been doing something against Pakistan, and Pakistan was claiming victimhood. But our mission could ensure that India's message and the actual position that was on the ground, this was explained to them. We also told about the incidents of terrorism that was inflicted on India. The difference between India and Pakistan also was given us a big description there. India being a secular, with rich diversity, democratic country, where Pakistan indulging in theocratism and also military rule. And we feel that the message of this mission has gone down very well among the
among those countries. We could meet state agencies, state actors, non-state actors, ministers, parliamentarians, think tank, media, community, and all those sections of the society. And at the end of the day, when we have completed the mission, we feel that we have fulfilled the mission or the responsibility that was entrusted to us. Having said this, now since the opposition members who are part of the outreach team have fulfilled their obligation and duty, it is for the government to fulfill its duty of convening the parliament and informing the people. We have informed the world community. Now let the government take the initiative to convene the parliament so that our Indian people are also informed about nuances. We don't want to have a unilateral description of the events. Let it be as per the rules of the democracy, where questions could be asked, where suggestions could be done. Let there be a fruitful discussions and discourse on the floor of the parliament so that we can take the people along with us. So it started the 16 political party from the opposition has written letter to the Prime Minister. See, CPIM also. yeah, the tagline of that is very simple. Yes, despite the differences, we cooperated with the government. We fulfilled our duty. Let the government also discharge its obligation and duty to the Indian people. That was the sum and substance of the letter. I'm just putting as a tagline so that people can understand that. And also the government could legibly understand what we actually want. Now, the opposition parties were raising demands for an all-party meeting with PM presiding it and also convening a special parliament session. Because, see, it's a democracy. We have a buoyant democracy where a lot of questions are there. That will only strengthen the country. I mean, just hiding everything or camouflaging everything, putting everything under the carpet will not help us. We are much more sensible, much more vibrant and dynamic than the Pakistan. Despite Pakistan being a theocratic state which is under the spell of the rule, military rule, they had a parliament session. So the whole world must be looking up to us, how we are going to tackle it. See, without taking the people to our side, how are we going to convince them? And at intervals, there are so many reactions that are coming from the government agencies, including the CSD. So let us be very clear about it. Let the government come, let the political leadership come, let the executive come. So the essence of democracy is that the executive is accountable to the legislature, that is to the people. So since we cooperated with the government fully, I can say that our team, with my little information about other team, we all worked in tandem together. There was unity of purpose and direction. There was not even a single iota of difference amongst the members. My team comprised of 5 political parties, and 3 political parties are from the opposition. Despite that, it was smooth. Our leader Sanjay Jha could lead it with so much of cohesion. So basically, we have upheld the so-called intention of the government. Since we have fully discharged our functions and duties, it is for the government to heed the voice of the opposition. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बकरों की कीमतें 50,000 से लेकर 2 लाख तक। ईद उल अजहा नजदीक ही है और राजस्थान की ऐतिहासिक अजमेर बकरा मंडी में रौनक जोरों पर है। यहाँ देश भर से खरीदार पहुँच रहे हैं और बकरों की कीमतें आसमान छू रही है। इस मंडी की खास बात यह है कि अजमेरा नस्ल का एक खास बकरा जिसकी कीमत पूरे 2 लाख रुपए है। इस बकरे को मालिक रमीज का दावा है कि इस नस्ल का कोई और बकरा आज इस मंडी में मौजूद नहीं है। रमीज बताते हैं ये अजमेरा नस्ल का बकरा है। वजन, ऊंचाई और चाल ढाल में सबसे अलग। इसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है और अब तक काफी लोग देखने आ चुके हैं। मंडी में बाकी बकरों की कीमतें भी 50,000 से शुरू होकर 80,000 रुपए तक जा रही है। यहाँ पर बकरों की ऊंचाई, वजन, नस्ल और दिखावट के हिसाब से दाम तय होते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी की परंपरा को निभाने के लिए लोग बेहतरीन बकरों की तलाश में है और अजमेर की मंडी उनके लिए एक बड़ा केंद्र बन गई है। बकरों की कीमतें 50,000 से लेकर 2 लाख तक। ईद उल अजहा
नजदीक ही है और राजस्थान की ऐतिहासिक अजमेर बकरा मंडी में रौनक जोरों पर है। यहाँ देश भर से खरीदार पहुँच रहे हैं और बकरों की कीमतें आसमान छू रही है। इस मंडी की खास बात यह है कि अजमेरा नस्ल का एक खास बकरा जिसकी कीमत पूरे 2 लाख रुपए है। इस बकरे को मालिक रमीज का दावा है कि इस नस्ल का कोई और बकरा आज इस मंडी में मौजूद नहीं है। रमीज बताते हैं ये अजमेरा नस्ल का बकरा है, वजन, ऊंचाई और चाल ढाल में सबसे अलग। इसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है और अब तक काफी लोग देखने आ चुके हैं। मंडी में बाकी बकरों की कीमतें भी 50,000 से शुरू होकर 80,000 रुपए तक जा रही है। यहाँ पर बकरों की ऊंचाई, वजन, नस्ल और दिखावट के हिसाब से दाम तय होते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी की परंपरा को निभाने के लिए लोग बेहतरीन बकरों की तलाश में है और अजमेर की मंडी उनके लिए एक बड़ा केंद्र बन गई है। कोई भीड़ ही नहीं हो रही है। रमीज, मैं अजमेर से हूँ। ये बकरा बकरी से है, बकरी गांव से। इस बकरे की 42 हाइट है और इसमें वजन है 120 किलो जिंदा। और ये लौंग खाता है, पत्ती खाता है, सब कुछ खाता है। और ये है अजमेरा और इसके हम पैसे मांग रहे 2 लाख रुपए। अजमेरा अभी इस मंडी में तो अभी तक तो कोई जानवर इसके मुकाबले नहीं आया है। रमीज। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची में आज आदिवासी संगठनों का बंद। रांची में आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वजह है सिरमटोली के मेकॉल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर रैंप। वजह है सिरमटोली के मेकॉल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर रैंप का निर्माण जो सरना स्थल के बेहद पास से गुजर रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि ये रैंप उनके पवित्र धार्मिक स्थल सरना स्थल की पवित्रता को भंग करता है और इससे उनकी भावनाएं आहत हो रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस रैंप का मार्ग बदला जाए और सरना स्थल की परंपरा, सम्मान और धार्मिक गरिमा को सुरक्षित रखा जाए। बंद के चलते रांची के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजार बंद है, सड़क परिवहन पर असर पड़ा है और पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। आदिवासी नेताओं का साफ कहना है, अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रांची में आज आदिवासी संगठनों का बंद। रांची में आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वजह है सिरमटोली के मेकॉल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर रैंप। वजह है सिरमटोली के मेकॉल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर रैंप का निर्माण जो सरना स्थल के बेहद पास से गुजर रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि ये रैंप उनके पवित्र धार्मिक स्थल सरना स्थल की पवित्रता को भंग करता है और इससे उनकी भावनाएं आहत हो रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस रैंप का मार्ग बदला जाए और सरना स्थल की परंपरा, सम्मान और धार्मिक गरिमा को सुरक्षित रखा जाए। बंद के चलते रांची के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजार बंद है, सड़क परिवहन पर असर पड़ा है और पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। आदिवासी नेताओं का साफ कहना है, अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ट्रंप के आदेशों का पालन
करने वाले नेता से की थी, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और घटिया टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनमें विपक्ष के नेता जैसे गंभीर पद को संभालने की न तो क्षमता है न ही परिपक्वता। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास इतिहास में आत्मसमर्पण की लंबी। उन्होंने आरोप लगाया 1948 में पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया और देश का 1/3 हिस्सा जिन्ना व मुस्लिम लीग को दिया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर सकती है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ट्रंप के आदेशों का पालन करने वाले नेता से की थी, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और घटिया टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनमें विपक्ष के नेता जैसे गंभीर पद को संभालने की न तो क्षमता है न ही परिपक्वता। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास इतिहास में आत्मसमर्पण की लंबी। उन्होंने आरोप लगाया 1948 में पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया और देश का 1/3 हिस्सा जिन्ना व मुस्लिम लीग को दिया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया है। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को, जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन विच हैज मेड द इनविंसिबल कांग्रेस एज एन इररिलेवेंट कांग्रेस इन सेवरल ऑफ द इंडियन स्टेट। और रही बात इसकी कि वो जिस प्रकार की बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के विवेक को इसी से समझा जा सकता है कि मात्र 1 साल पहले लोकसभा चुनाव आने के बाद जो थर्ड अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न टच कर पाने के को विजय कहते थे, यानी तीसरे प्रयास में 3 अंकों की संख्या को न छू पाना जिनके लिए विजय था, और लगातार तीसरी बार जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना पराजय था। जिसकी बुद्धि ऐसी हो, उसे ही भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नजर आता है। वैसे मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, यह था आतंकवाद से सरेंडर। आपने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाके बोला था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप क्यों भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये होता है सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर, हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडर, सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का 13,000 किलोमीटर का एरिया सरेंडर। 1965 में जंग में फौज जीती, हाजीपुर का दर्रा, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर, जो हम जीत के आए थे, कच्छ के पास का इलाका और लाहौर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जमीन सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आज़ादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। तो मैं बताना चाहता हूं
कि अम्मा मियाँ अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आज़ादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर हैं। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं और राहुल जी आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। वैसे तो किसी भी टेन्योर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। जो इस तरह की बात कहते हैं, 7th फ्लीट जब अमेरिका ने भेजा था तो उसके साथ साथ रशिया ने भी अपना फ्लीट भेज दिया था। बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था यूनाइटेड नेशंस में। सोवियत रूस ने वीटो किया था, आधा दर्जन बार सोवियत रूस ने वीटो किया था। और मैं तो पूछना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हमारे हाथ में थी। नस नहीं, पूरा टेटुआ हमारे हाथ में था। पाक अधिकृत कश्मीर क्यों छोड़ दिया वो तो छोड़ दीजिए, हमारे 54 लोग जो पाकिस्तान में बंदी थे वो क्यों नहीं वापस लिए। आज इतिहास पूछना चाहता है, 93,000 देके 54 वापस न लेना, ये कौन सा गणित था, ये कौन सी मजबूरी थी और किसके आगे सरेंडर था। अगर किसी को समझना है तो केजीबी और सीआईए की डिक्लासिफाइड फाइल्स में जाके देखे, बहुत सारे सूत्र बिखरे हुए पड़े हैं जो ये बताएंगे कि हकीकत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची सरना स्थल विवाद पर बीजेपी का सरकार पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय के बंद और विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मुख्यमंत्री राजधर्म भूल गए हैं। ये सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार कहती है, लेकिन आज वही आदिवासी सड़कों पर है। उन्हें मजबूर होकर बंद का आह्वान करना पड़ा है। मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर आदिवासी समाज से संवाद करना चाहिए। सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप के निर्माण को लेकर आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और इसे लेकर सरकार की चुप्पी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। साथ ही प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी का मतलब वीरता है। भारत ने जो किया आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आत्मसमर्पण वो होता है जब आप अपनी जमीन चीन को सौंप देते हैं, जैसा उनके पूर्वजों ने किया। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा रही है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भ्रम फैलाने और सेना का मनोबल तोड़ना। रांची सरना स्थल विवाद पर बीजेपी का सरकार पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय के बंद और विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मुख्यमंत्री राजधर्म भूल गए हैं। ये सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार कहती है, लेकिन आज वही आदिवासी सड़कों पर है। उन्हें मजबूर होकर बंद का आह्वान करना पड़ा है। मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर आदिवासी समाज से संवाद करना चाहिए। सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप के निर्माण को लेकर आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और इसे लेकर सरकार की चुप्पी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। साथ ही प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी का मतलब वीरता है। भारत ने जो किया आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आत्मसमर्पण वो होता है जब आप अपनी जमीन चीन को सौंप देते हैं, जैसा उनके पूर्वजों ने किया। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा रही है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भ्रम फैलाने और सेना का मनोबल तोड़ना।
देखिए, मुख्यमंत्री जी राजधर्म भूल गए हैं। राजधर्म होता है कि वो सभी पक्षों को बुलाकर उनकी बात सुनते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। मुख्यमंत्री जी हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। कहते हैं ना, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो आदिवासी सड़क पर है और ये सरकार खुद को तथाकथित रूप से आदिवासियों की सरकार कहती है। और आदिवासियों का जो सबसे पवित्र स्थल है, जो पूजा का स्थल है, उनका सरना स्थल, वो भी रांची का सबसे बड़ा और पुराना सरना स्थल, वहाँ पर सिरमटोली जो फ्लाईओवर है उसके रैम्प को लेकर कि रैम्प को यहाँ पर नहीं उतारना चाहिए, विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पहल नहीं की और आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। पूरे प्रदेश में आदिवासी सड़कों पर हैं और एक आदिवासी मुख्यमंत्री है जो किंग करते हुए विमूढ़ बनकर बैठा हुआ है, जिसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो राज सत्ता में बैठ गया है। ऐसी सरकारें नहीं चलती। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी भी इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं, रास्ता निकालें और इस विवाद को सुलझाएं। अमेरिका से कॉल आया, ट्रम्प का कॉल आया, कहा गया नरेंद्र सरेंडर और नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। राहुल गांधी बस अपने लगता है राजनीति की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए वो जितना नीचे गिर सकते हैं राजनीतिक रूप से वो गिरते जा रहे हैं। नरेंद्र का अर्थ होता है शौर्य, नरेंद्र का अर्थ होता है दुश्मनों की सीमा के भीतर घुसकर मारना, नरेंद्र का अर्थ होता है कि पूरा विश्व एक स्वर में कहता है कि भारत ने जो किया वो सही किया। और सरेंडर तो वो होता है ना, जो इन्होंने अस्काई चीन के हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर को पाकिस्तान को और चाइना को सरेंडर कर दिया और ये कहकर कि यहाँ एक जो तिनका है वो घास कभी नहीं उगता है। सरेंडर तो वो होता है ना जब ये श्रीलंका के पास के अपने एक द्वीप को श्रीलंका को दे देते हैं और इसको कहते हैं कि साहब हमने तो ये विदेशी रणनीति के तहत दिया, तो इसे सरेंडर कहा जाता है, जो राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने पूर्व काल में किया है। और नरेंद्र, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत की अस्मिता, शौर्य और भारत की ताकत का प्रतीक है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत का बड़ा बयान, हमले पर होनी चाहिए चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों की नाराजगी और संसद में चर्चा की मांग अब तेज होती जा रही है। इस कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने संसद के विशेष सत्र की मांग का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा, हम सिर्फ इस हमले पर चर्चा चाहते हैं, ये नहीं कि सरकार ने क्या किया या क्या नहीं। अगर 16 विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकमत है तो विशेष सत्र बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। लोकतंत्र में जनता को भरोसे में लेना जरूरी होता है, लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार सब कुछ छिपाने में लगी है, ये तरीका गलत। राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर औपचारिक तौर पर सत्र बुलाने की मांग रखेंगे। विपक्ष का कहना है कि इस हमले में पर खुली और गंभीर चर्चा जरूरी है ताकि देश को जानकारी मिले और सरकार की मंशा भी साफ हो। संजय राउत का बड़ा बयान, हमले पर होनी चाहिए चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों की नाराजगी और संसद में चर्चा की मांग अब तेज होती जा रही है। इस कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने संसद के विशेष सत्र की मांग का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा, हम सिर्फ इस हमले पर चर्चा चाहते हैं, ये नहीं कि सरकार ने क्या किया या क्या नहीं। अगर 16 विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकमत है तो विशेष सत्र बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। लोकतंत्र में जनता को भरोसे में लेना जरूरी होता है, लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार सब कुछ छिपाने में लगी है, ये तरीका गलत। राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर औपचारिक तौर पर सत्र बुलाने की मांग रखेंगे। विपक्ष का कहना है कि इस हमले में पर खुली और गंभीर चर्चा जरूरी है ताकि देश को जानकारी मिले और सरकार की मंशा भी साफ हो। आप बोलिए। सर, इंडिया ब्लॉक ने एक लेटर लिखा हुआ है स्पेशल सेशन के लिए, पर इसमें शरद पवार का साइन नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये मतभेद क्यों है सर? कोई मतभेद नहीं है। स्पेशल सेशन के बारे में किसी के मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। इस विषय पर हम डिफेंस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम पहलगाम में जो हुआ है टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान ने जो एक्शन ली है, जो बहुत ही सीक्रेट है ऐसे लोग बोलते हैं, हम उसके ऊपर कहाँ बात करेंगे।
इस देश पे निरपराध लोगों पर अटैक होता है, 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर अगर हम स्पेशल सेशन की मांग करते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमने इस प्रकार का एक लेटर सब मिलकर 16 पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज के सिग्नेचर उसके ऊपर है और हम 1-2 दिन में हमारा लेटर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी को जाएगा। शरद पवार कहते हैं कि इंडियन आर्मी सवाल नहीं उठाना चाहिए, बस दूसरी ओर से कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तान के जो मंत्री है वो अपनी जनता को बताते, इनफैक्ट रशिया में जो हुआ उसके बारे में उनको जनता को बताया जा रहा है। बताना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी बात है, जो सरकार कर रही है उस बारे में जनता को अवगत करना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। पाकिस्तान में स्पेशल सेशन हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री जनता से डायलॉग कर रहे हैं। हाँ, रशिया में जो कल यूक्रेन का हमला हो गया उस बारे में पुतिन जनता से डायलॉग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जो हमला किया, ज़ेलेंस्की ने अपने जनता को बताया क्या हो गया है। लेकिन एक देश है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, वहाँ सब कुछ छुपाया जाता है। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल का पहला खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली। पहली बार आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने जमकर जश्न मनाया। वहीं जीत के बाद कोहली ने अनुष्का शर्मा के सपोर्ट को लेकर बात की और बताया कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय अनुष्का शर्मा को भी जाता है। जीतने के कुछ ही पल बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा की ओर से पर्दे के पीछे दिए गए समर्थन और त्याग के बारे में बताया, जिससे उन्हें मैदान पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपने 18वें साल में कोहली ने आखिरकार आईपीएल जीत लिया, जब रजत पाटीदार की अनुयायी वाली उनकी टीम ने मंगलवार को फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया। आईपीएल का पहला खिताब जीतने के बाद बोले विराट कोहली। पहली बार आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने जमकर जश्न मनाया। वहीं जीत के बाद कोहली ने अनुष्का शर्मा के सपोर्ट को लेकर बात की और बताया कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय अनुष्का शर्मा को भी जाता है। जीतने के कुछ ही पल बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा की ओर से पर्दे के पीछे दिए गए समर्थन और त्याग के बारे में बताया, जिससे उन्हें मैदान पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपने 18वें साल में कोहली ने आखिरकार आईपीएल जीत लिया, जब रजत पाटीदार की अनुयायी वाली उनकी टीम ने मंगलवार को फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीबी ने जीती अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। आईपीएल इतिहास का एक यादगार पल। कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। इस जीत ने न सिर्फ आरसीबी फैंस को खुश किया बल्कि देश भर में क्रिकेट प्रेमियों को भी भावुक कर दिया। खासकर विराट कोहली के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो 2008 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी कड़ी मेहनत से टीम की पहचान बन गए हैं। दिल्ली में उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पूरा देश चाहता था कि विराट ये ट्रॉफी जीते। वे बेहद भावुक, खुश और उत्साहित थे क्योंकि ये पल उनके लिए बहुत लंबे समय से अधूरा सपना था। कोच राजकुमार शर्मा ने विराट कोहली की निरंतरता की तारीफ करते हुए कहा, अगर आप 2008 से देखें तो शायद ही कोई सीजन ऐसा रहा होगा जिसमें विराट का प्रदर्शन कमजोर रहा हो। वे आरसीबी की रीढ़ रहे हैं और टीम के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं। कोच ने ये भी कहा है कि अब समय है बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का, क्योंकि ये जीत सिर्फ विराट या आरसीबी की नहीं बल्कि हर उस क्रिकेट प्रेमी की है जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। आरसीबी ने जीती अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। आईपीएल इतिहास का एक यादगार पल। कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। इस जीत ने न सिर्फ आरसीबी फैंस को खुश किया बल्कि देश भर में क्रिकेट प्रेमियों को भी भावुक कर दिया। खासकर विराट कोहली के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो 2008 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी कड़ी मेहनत से टीम की पहचान बन गए हैं। दिल्ली में उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पूरा देश चाहता था कि विराट ये ट्रॉफी जीते। वे बेहद भावुक, खुश और उत्साहित थे क्योंकि ये पल उनके लिए बहुत लंबे समय से अधूरा सपना था।
कोच राजकुमार शर्मा ने विराट कोहली की निरंतरता की तारीफ करते हुए कहा, अगर आप 2008 से देखें तो शायद ही कोई सीजन ऐसा रहा होगा जिसमें विराट का प्रदर्शन कमजोर रहा हो। वे आरसीबी की रीढ़ रहे हैं और टीम के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं। कोच ने ये भी कहा है कि अब समय है बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का, क्योंकि ये जीत सिर्फ विराट या आरसीबी की नहीं बल्कि हर उस क्रिकेट प्रेमी की है जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के बयान पर श्रीकांत शिंदे का तीखा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर अब शिवसेना शिंदे गुट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब पूरा देश और सभी सांसद मिलकर भारत की आवाज को मजबूत से उठा रहे हैं तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीति की नहीं बल्कि एकता और समर्थन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति बयानबाजी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने का है। जब देश खतरे में होता है तब दल नहीं देश पहले होता है। राहुल गांधी को अपने पद की गहराइयां बनाए रखनी चाहिए। इस बयान से साफ है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयानों पर अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के अन्य घटक दल भी तीखा विरोध जता रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर श्रीकांत शिंदे का तीखा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर अब शिवसेना शिंदे गुट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब पूरा देश और सभी सांसद मिलकर भारत की आवाज को मजबूत से उठा रहे हैं तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीति की नहीं बल्कि एकता और समर्थन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति बयानबाजी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने का है। जब देश खतरे में होता है तब दल नहीं देश पहले होता है। राहुल गांधी को अपने पद की गहराइयां बनाए रखनी चाहिए। इस बयान से साफ है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयानों पर अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के अन्य घटक दल भी तीखा विरोध जता रहे हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।